So hello everyone, welcome to Eureka Tutorials, that is Gyan Shruvat class. You guys are most welcome again. And today's lecture is also going to be very interesting. आज का lecture भी हमारा बहुत ही interesting होने वाला है. It's all about the chromosomal or chromosome aberrations. All right. So we are in every video हम लोग जो cover कर रहे topics, we are covering the key points and the important topics mainly, right? So आज का topic भी है जो है वो काफी important है because examinations में there are high chances no कि क्या क्या चीजें करनी है. तो हम लोग हर lecture में हमारे वो topics cover कर रहे हैं, important points और the topics जो कि definitely examination point of view से या फिर board examination point of view से these are going to be really helpful and yes, scoring too, right? So talking of chromosome aberrations, so that's the term and let's crack the terminology. What is this actually? ये है क्या चीज? So aberration नाम से देखिए, we solve a lot of things, we solve lots of stuffs. So when we talk of the terminology aberration, इसका मतलब होता है deviate करना, यानी कि जो चीज होनी थी एक्चुअल में, नॉर्मल जो होनी थी वो deviate हो गई, हट गई अपनी जगह से, हट गई, deviate हो गई, मीन्स एबनॉर्मल हो गई, एबनॉर्मल हो गई. सो ऐसी चीज को क्रोमोसोम में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि एबनॉर्मल हो रहा है, सो दैट इज नोन एज क्रोमोसोम or chromosomal aberrations. All right, and they are broadly divided into 4 types. तो क्या होता है इसमें, चलिए जान लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है. If we talk of the structure of a chromosome, there is definitely a beautiful structure of a chromosome, right? So हम लोग ये पढ़ चुके हैं भाई कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है. अब सिस्टर क्रोमैटिड्स कैसे बनती है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ये तो बिल्कुल ही बेसिक्स है. If we talk of the basics, homologous chromosomes, non-homologous chromosomes. So suppose this is, I drew a structure, I drew a rough diagram of a chromosome. Suppose this is the chromosome and there are like bands, segments, I can say segments. यहाँ पे कुछ भाग है, segments है क्रोमोसोम के, इस तरीके से arranged positions है, right? तो क्या होगा अगर मान लिया मैं ये वाला जो सेगमेंट है, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, अगर मैं इसको उड़ा दूं, इसको मैं बाहर फेंक दूं, राइट? तो ये जो सेगमेंट है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज डिलीटेड, राइट? तो ये जो सेगमेंट है ये डिलीट हो गया है, उड़ गया है. सो डिलीशन, वन कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोम एबेरेशंस इज डिलीशन. उड़ा दिया एक भाग को, एक सेगमेंट को. तो सेगमेंट्स के साथ, अगर क्रोमोसोम के सेगमेंट्स के साथ कुछ भी छेड़खानी हो रही है, या तो उसको उड़ा दिया या फिर एक और कॉपी यहां पे आ गई, इस तरीके से एक और बैंड यहां पे बन गया, ये पर्पल कलर एक और आ गया, लाइक दिस. सो दैट इज डिप्लीकेशन. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग विद द segments, one or more segments of the chromosome, so that particular terminology, those things come under this particular topic. So it's going to be very interesting and of course very important topic. All right, so before proceeding this particular topic, I would tell you more other important terminologies also. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको इस वीडियो में अगेन बताने वाली हूं. सो प्लीज रिफर टू लेटेस्ट डेटा, एज आई ऑलवेज सजेस्ट, लेटेस्ट जर्नल्स, लेटेस्ट द गुड इंटरनेशनल बुक्स फॉर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, राइट? So some important topics, please go through. Mutation, very important topic. And if I talk of the mutation thing, if I talk of mutation, there is a lot of thing again, lots of stuffs to be covered. So I'm not going to cover this today. Mutation काफी vast topic है और important भी है. So please go through. So mutation, then comes
terminologies I'm using, the very basics. Monohaploid, monoploid, ये important terms है. Euploid, all right, very important terms. Then yes, I recall auto polyploid or autopolyploidy, allo polyploidy. So these terminologies. So आप कोई भी एग्जामिनेशन दे लीजिए, right? So these kind of questions, many questions have been framed on these terminologies, these topics. Even the research-based examinations, the basic kind of questions have been framed. और yes, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो ये इंपॉर्टेंट है मेडिकल, राइट? सो लेट्स एक और चीज जो मुझे याद आ रही है यहाँ पे, मोर टर्मिनोलॉजीज लाइक एन्यूप्लॉइडी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, राइट? ये भी आई वुड से एन्यूप्लॉइडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लॉइडी नाम से पता लग रहा है, अगेन ट्रैकिंग द टर्मिनोलॉजी, कुछ गड़बड़ हो रही है क्रोमोसोम की नंबरिंग में. जब नंबरों के साथ छेड़खानी होती है, नंबरों के साथ ऊपर नीचे हो जाते हैं जब नंबर्स क्रोमोसोम्स के, तो उसको क्या बोलते हैं? ये सब क्या हो रहा है? दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ओनली. नो, जीन्स एलील्स में गड़बड़ी कब होती है? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. द प्रोसेस इज म्यूटेशन एंड देयर डेफिनेटली something goes wrong with the numbering or the structures, the chromosomal abnormalities. So aneuploidy क्या हो रहा है? क्रोमोसोम के नंबर में वेरिएशंस आ रहे हैं. नेचर हैज सेट एवरीथिंग परफेक्टली. नेचर ने, कुदरत ने सारी चीजें इतनी परफेक्ट बनाई, इतनी फिक्स्ड बनाई कि क्रोमोसोम्स के नंबर हर स्पीशीज में फिक्स्ड है. द पोजिशनिंग, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. सो इजंट नेचर वेरी ब्यूटीफुल, राइट? सो कुछ भी गड़बड़ हो जाए क्रोमोसोम की नंबरिंग में, पोजीशन में, तो क्या हो जाता है? डिफेक्ट्स हो जाते हैं, सिंड्रोम्स हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, पटॉल सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. सो वेरिएशन इन द क्रोमोसोम नंबर्स एंड these are actually coming under this particular topic, aneuploidy. So ये दो तरीके के होते हैं. If I talk of the classification of this, so first one is autosomal aneuploidy, right? And second is sex chromosomes based aneuploidy, sex chromosome aneuploidy. And again नाम से ही पता लग रहा है कि पहले वाले केस में द फर्स्ट वन ऑटोजोमल, यहाँ पे जो है ऑटोजोम्स के साथ गड़बड़ हो रही है, sex chromosomes are not involved. So if I tell you the examples here, you can easily correlate again. So there are three syndromes over here when we talk of autosomal aneuploidy, and these are, first one is Down's syndrome, Down's syndrome, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट? मैं core topics में very important topics. Then comes Edwards syndrome, Edwards syndrome, and then Patau's syndrome. So साइंटिस्ट लोगों ने अपने ही नाम पे जो है बीमारियां, if you guys are entering in this particular field, medical field, or becoming scientist or research based people, you will definitely, आप भी कुछ आगे invent या discover करेंगे, so अपना ही नाम देंगे ना. तो इसी तरीके से many scientists they अपना ही नाम देते हैं वो लोग, which is a good thing, right? So autosomal aneuploidy, Downs, Edwards and Patau syndrome. तो इसमें हमको पता है कि क्रोमोसोम के साथ क्या हो रहा है, ट्राइजोमी. I hope you guys are recalling ट्राइजोमी क्या है. ट्राइजोमी, क्रैक द टर्मिनोलॉजी. ट्राई का क्या मतलब होता है? मोनोजोमी, क्रैक द टर्म अगेन. नाम क्रम को तोड़िए, तोड़ दीजिए, सब पता लगेगा. सोम का क्या मतलब है, सोमी का क्या मतलब है, मोनो का क्या मतलब है, वही यहाँ पे ट्राई का क्या मतलब है. इस तरीके से चीजें बहुत आसान है, आसान हो जाती है, आसान भी है.
any subject, right? So that's autosomal aneuploidy. Yes, please, dear children, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्या क्रोमोसोम में क्या क्या हो रहा है, कौन से किसके क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो रही है, और विच क्रोमोसोम इन विच क्रोमोसोम, क्वेश्चन मार्क, दिस इज क्वेश्चन मार्क एक्चुअली, यहां पे क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एनिप्लॉइडी, दे आर अगेन लाइक, इसके अगर बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्स बेस्ड एनिप्लॉइडी, मेन इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम, एंड नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्लाइनफेल्टर. रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार हर साल, मेनी इयर्स, इट्स बीन ईयर्स, सालों से रिसर्च बेस्ड, नीट, एम्स क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें क्या हो रहा है, व्हाट गोज रॉन्ग व्हेन वी टॉक ऑफ दीज टाइप ऑफ सिंड्रोम्स, the chromosomes, the positioning, the variations in the numbers. So important and important. All right, so please cover these topics. So आज का हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम एबिरिएशंस पे. अब हम आते हैं, क्योंकि हमारा टास्क आज का जो है मेन टॉपिक, कोर टॉपिक इज दिस. सो टॉकिंग ऑफ क्रोमोसोम एबिरिएशंस, they are basically of 4 types. They are classified into 4 types, core broad classification, and first one is deletion. पहला जो है वो है deletion, next is duplication, then comes inversion, and the last one is translocation. Important. So yes, definitely questions फ्रेम हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और ये टॉपिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही फॉर आवर नॉलेज. पता तो होनी चाहिए चीजें बच्चों. या वी शुड नो, वी शुड हैव नॉलेज कि हो क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन नेचर, व्हाट एक्चुअली हैपेंस. ऑलराइट, सो पहले वाले पे आते हैं, डिलीशन. जो पहला वाला है डिलीशन, एंड स्ट्रक्चर अगर बनाए तो चलिए एक बना लेते हैं लाइक दिस. Here is centromere. Please recall the structure of chromosome. Okay, so suppose this is a normal chromosome. ये वाला पहले वाला जो मैंने बनाया, इसको आप मान लीजिए नॉर्मल क्रोमोसोम है, और यहां जो मैं बना रही हूँ एबनॉर्मल है. क्यों अभी आप लोगों को पता लगेगा. देखिए, सो दिस इज द फर्स्ट वन इज नॉर्मल. सो सपोज देयर आर सेगमेंट्स, इसके भाग है, इसके टुकड़े मैंने कर दिए, ये बना लिए टुकड़े मैंने यहाँ पे इसके नॉर्मल क्रोमोसोम के. इसी तरीके से 1 2 3 4, यहां मैंने 4 ही बनाए हैं. सो व्हाट, लेट्स से दीज आर लाइक A B C D E F G, so like this. The center is centromere. Position of the centromere is important. All right, so suppose this is a normal, this particular chromosome is normal, and here what happens, डिलीशन इज हैपनिंग. सपोज डिलीशन हो गया, ठीक है, डिलीशन हो गया. मान लिया मैंने यहां से, यहां जहां पे एरो, आई एम ड्रॉइंग एरोज ओवर हियर, यहां पे डिलीट कर दिया ये पर्टिकुलर पोर्शन, यहां पे ये डिलीट कर दिया लाइक दिस. लेट्स से इट्स आफ्टर जी, यहां पे लगा लीजिए जी के बाद में, ठीक है. तो क्या बचेगा यहां पे, A B C D, EFG पोर्शन इज डिलीटेड, तो ये उड़ गया बाहर, EFG उड़ गए सेगमेंट्स. सिंपल, राइट, सिंपल, उड़ा दिया, डिलीट कर दिया एक पर्टिकुलर सेगमेंट. सो व्हेन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम इज डिलीटेड, दैट इज एन एग्जांपल, दैट्स द केस ऑफ डिलीशन. सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम एबिरेशन, राइट, सिंपल. यस, नाउ next is this is fast. Next is duplication. So suppose this, again I am drawing the structure. ये बनाया एक normal chromosome. First one is normal chromosome, and now here which the stuff I am drawing now is abnormal chromosome. Suppose. All right.
then let's say segments here 1 2 3 4 5, suppose this, and 1 2 5 is same. Okay, please mark this like this. Okay, now what is happening, so let's say duplication has taken place over here. यहाँ पे duplication हो गया है, तो कौन कौन से सेगमेंट्स थे, ए बी सी डी ई, राइट राइट. सो लेट्स से सी डी, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट सी और डी, ये जो बैंड, ये जो आ रहा है सेगमेंट, इसको डुप्लीकेट कर दिया है. डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट मूवी आप लोगों ने देखी है शाहरुख खान की, वही सेम, भाई भाई बहन बहन एक जैसे, बिल्कुल ट्विंस. सो डुप्लीकेट हो गया, वही जो कॉपी है वही बन गई दोबारा से. सो सी डी भाई भाई हो गए, दोबारा से आ गए, भाई भाई साथ में आ गए. सो दिस इज duplication and other type of chromosome aberration. Simple. So 1 2, simple. Now next is inversion. अगली जो कहानी आ रही है वो आ रही है इन्वर्जन की. तो चलिए इस तरीके से इसको समझ लेते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट. अगेन आई रिपीट, देयर इज नथिंग टू रट्टोफाई और मग अप द स्टफ्स. Dear children, if concepts are clear, the kahani is very very simple. So let's say this is a chromosome. All right, यहाँ पे एक segment है, arrow से इस तरीके से triangular shape में I am drawing a triangle over here. Suppose this is one segment, this is one segment. यहाँ पे एक है one segment over here, this particular position, and then one more like this. Okay. Okay, so suppose this is B, the blue one is B, then C, then D. So talking of inversion, नाम से अगेन पता लग रहा है, we track the terminology. invert हो गया, उल्टा हो गया, घूम गया, inverted triangle घूम गया, तो D पहुंच गया ऊपर, D की कहानी पहुंच गई ऊपर और B पहुंच गया नीचे. So it's now D, C वही का वही रहा, and B. So the green portion is upwards now. D ऊपर पहुंच गया, green portion, and blue comes downwards. Blue portion is downwards. So that's the example of simple and very very simple. The example of inversion. Inversion का example है ये, right? So if we talk of inversion, it's again divided into two parts. दो part में divided है. First one is paracentric. Important and important. Every point, each and every point of our lectures are important. Please, dear children, don't skip. Pericentric. दो तरीके के होते हैं, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक. ऑलराइट, अगेन नाम से हम लोग लगा लेते, ट्रिक्स एंड टिप्स. अप्लाई दीज थिंग्स, अप्लाई ट्रिक्स एवरीवेयर वेयर एवर यू कैन. तो पैरा हिंदी में तोड़ लेते, पार मतलब दूर हो गया, हिंदी में लिख लेते पार, दूर हो गया. तो जब सेंट्रोमियर, इट्स एक्चुअली सेंट्रिक इज लाइक इट रिफर्स टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. सो वी नो देयर इज अ सेंट्रोमियर हियर, राइट? सो इफ सेंट्रोमियर is not involved in when inversion is happening, so that's an example of paracentric. तो दूर हो गया जब सेंट्रोमियर, अलग ही तरीके से मतलब हो रहा है inversion अलग, right? So वो जो केस हुआ, that's an example of paracentric inversion. And if we talk of pericentric inversion, peri मतलब centromere is there, centromere is involved in this particular inversion, in this particular type. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल, क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ पेरीसेंट्रिक, क्योंकि बीच में देखिए सेंट्रोमियर है. अगर ये सेंट्रोमियर नहीं होता, इफ सेंट्रोमियर इज नॉट देयर, सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पार हो गया, भाई दूध भगा दिया, फेंक दिया हमने सेंट्रोमियर को. सो वो एग्जाम्पल हो गया पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, राइट? सो लेट्स से चलिए बना लेते हैं. यहां है
ये रहा, यहां है, तो सेंट्रोमियर यहां पे आ रहा है। तो कौन सी कहानी गड़बड़ हो रही है इधर वाले सेगमेंट्स की? बी इधर है, सी इधर है, एंड डी इज हियर। सो दीज आर बी सी डी, इन्वर्ट हो गया, तो सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व, सेंट्रोमियर दूर दूर है एक्चुअली, दूर पार, इट्स पार। सो यहाँ पे सो द सीरीज इज डी सी बी, इन्वर्ट हो गया, बट सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व। इन केस ऑफ पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन सेंट्रोमियर इज देयर। ऑलराइट, यस, right, interesting, very very interesting. You guys are imagining and recalling everything. Now next category is translocation. Again a very important and interesting, again translocation. नाम से आप लोग मुझे बताएंगे बच्चों कि भाई कहानी क्या है, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है। क्रैक द टर्मिनोलॉजी, क्रैक द टर्मिनोलॉजी। सो लोकेट मतलब कुछ ना कुछ पोजीशन से लेना देना है, तो कहानी इसमें ये होती है कि एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स, पोजीशन से, इधर वाला उधर आ गया भाई, एक भाई उधर पहुंच गया गुंडों के पास, और दूसरा भाई जो है शरीफ कंपनी में पहुंच गया, एक्सचेंज हो गए सेगमेंट्स के। ट्रांस का मतलब ही क्या होता है, हम लोगों ने केमिस्ट्री, वी हैव रेड इन केमिस्ट्री ना, सिस एंड ट्रांस। सो ट्रांस मींस लोकेशन मींस, राइट, इजी, यस इजी। So let's say, let me draw, like suppose there is one chromosome, एक यहां बना लेते हैं like this, and one more like this, छोटे वाला एक बड़ा एक छोटा, let's draw like this. Okay, I am drawing rough diagrams, please dear children, go through beautiful images as I always say. All right, so translocation, यहाँ पे let's say suppose there is a segment over here, यहाँ पे एक segment ये रहा, इस क्रोमोसोम पे एक भाग है black color, and here also red, let's make it red, right? So when translocation happens, what exactly happens, क्या होता है जब ट्रांसलोकेशन हो रहा है? तो सेगमेंट जो भाग जो है इधर उधर हो जाते हैं, एंड आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ राइट नाउ इट्स बैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन बेसिकली, ठीक है, लेट्स इट्स ट्रांसलोकेशन, ओके नॉर्मल। सो व्हाट विल हैपन, ब्लैक वाला पोर्शन विल गो हियर एंड रेड वाला विल कम हियर, सिंपल, यस, वेरी वेरी सिंपल। सो ये रहा रेड, कहानी ये हुई कि रेड के पास तो रेड पहुंच गया भाई, ट्रांसलोकेट इधर उधर हो गई, पोजीशंस एक्सचेंज हो गई, और यहां पे ब्लैक पोर्शन इधर पहुंच गया। सो दिस इज ट्रांसलोकेशन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ट्रांसलोकेशन इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ओके ओके, अब यहां पे क्या कहानी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से सपोज अगेन लेट्स ड्रॉ, यहां पे मैंने बनाया। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स हियर, यहां पे क्या हो रहा है, सपोज सो दे लेट्स से देयर आर टू, ये मैं दो क्रोमोसोम्स, आई एम ड्रॉइंग टू क्रोमोसोम, ओके। सो यू कैन सी centromere is here, centromere's position is here, and you know we know this कि on the basis of the position of centromeres, अगर centromere की position इधर उधर होती है तो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स बनते हैं, telocentric, acrocentric, like this. So when centromere is here, this particular position of the centromere has divided the chromosome into two unequal arms.
तो आर्म्स जो है वो एक बड़ा छोटा हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं। सो इस तरीके के क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। So these type of chromosomes are known as acrocentric chromosome. So when we talk of Robertsonian translocation, ये वाला जो ट्रांसलोकेशन है ये होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के साथ। मीन्स एक आर्म छोटा है, एक आर्म बड़ा है, तो छोटे वाला जो आर्म है उसको बोलते हैं पी आर्म। शॉर्टर आर्म और शॉर्ट आर्म इज नोन एज पी आर्म एंड लॉन्ग आर्म इज नोन एज क्यू आर्म. So this translocation happens in this, and what exactly happens? The shorter segments, shorter segments are lost. ये उड़ जाएंगे. These are lost, and long segments rejoin. ये जो Q arms है ये rejoin हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे फिर से. So that is a case of Robertsonian translocation. है बहुत ही कम क्रोमोसोम है, only a few, only 5, I guess only 5 chromosomes undergo this particular type of translocation, and that's the numbering. If we talk of the numbering, so these are like 13, 14, 15, 21, 22. ये वाले जो क्रोमोसोम्स है इन्हीं के साथ ये ट्रांसलोकेशन होता है. और अगर सिंड्रोम्स की बात करें तो डाउन सिंड्रोम्स में ये पाया जाता है. This type of translocation is observed in Down's syndrome. So what is happening? The shorter arms are lost and then the long arm rejoining of the long arms. अब इसी से मिलता जुलता क्या है? एक और केस है, and the term is isochromosome. क्रोमोसोम. अब इसमें क्या हो रहा है? यहां पे तो क्या हुआ था? सपोज आई एम दिस इज अ क्रोमोसोम, सपोज ये रहा, राइट, एंड वन मोर हियर. व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन व्हेन वी टॉक ऑफ द आइसोक्रोमोसोम्स, यहां पे जो है these segments again they are lost. These segments ये जो है lost, one arm is lost, and what happens? The longer arm अपनी एक मिरर इमेज बना लेगा, अपने जैसा एक भाई बना लेगा या बहन बना लेगा, भाई भाई एक जैसे, बहन बहन एक जैसे. तो वहां पे क्या हो रहा था? इन केस ऑफ रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, rejoining was happening of Q arms, right? And here one particular segment is lost, the one arm is lost, and mirror image of the other arm happens, right? So mirror image बन जाएगी, अपने जैसा एक भाई, जोड़ीदार भाई बना लेगा. And please remember, it could be, it can be, the mirror images can be either of the shorter arms or the long arms. तो वो जो इमेजेस बनेगी या तो छोटे वाले आर्म्स की भी बन सकती है और बड़े वाले आर्म्स की भी बन सकती है. सो दैट्स बेसिकली डिलीशन एंड डुप्लीकेशन. तो पहले क्योंकि उड़ा तो डिलीशन हुआ, डिलीशन हैपेंस, एंड उसके बाद में क्या हुआ? मिरर कॉपी बनी तो डुप्लीकेशन. सो डिलीशन एंड डुप्लीकेशन. And isochromosome is observed in case of syndromes like Turner's syndrome. तो यहाँ पे या तो पार्शियल ट्राइजोमी हो जाएगी या पार्शियल मोनोजोमी हो जाएगी. क्यों होगा आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं. यू कैन थिंक योरसेल्फ, थिंक. अब कहा जहां पे पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन इज डिलीटेड तो वहां पे मोनोसोमी हो जाएगी. पर्टिकुलर पोजीशन इज डुप्लीकेटेड वहां पे ट्राइजोमी हो जाएगी. जीन्स जो होगी इधर उधर हो जाएगी ना. सो दैट्स द केस ऑफ ट्राइजोमी. पार्शियल ट्राइजोमी भी बोलते हैं या पार्शियल मोनोसोमी भी बोलते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, very important topics, right? And one more I remember, that is the last ring chromosome.
देखिए अगेन नाम से ही पता लग रहा है, रिंग क्रोमोसोम, अंगूठी बन गई, रिंग बन गया भाई, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे. ओके, सो सपोज दिस इज वन दिस इज अ क्रोमोसोम, and let's say here are, let's say these terminal positions को consider करेंगे, we are considering these terminal position, and what happens basically, we are going to delete the terminal positions. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया ये वाले positions, deletion is happening now, and what will happen, this particular the middle one, जब डिलीट कर देंगे, we delete the terminal positions, the middle portion will form a ring like structure. तो अंगूठी जैसा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे घूम गया like this, right? Simple. So एक ring like structure बन गया, and this is ring chromosome, right? So I covered many important topics today, so dear children, please go through. I hope you understood the concepts very clearly. So be updated, be curious, and keep practicing. Thank you so much.